മുന്നോട്ട് മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. സാധാരണ ഒരു പുഷ്പത്തിൻ്റെ മണം അത് വീശുന്ന ദിശയിലേക്ക് മാത്രമേ പോകുള്ളൂ. സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സേവത്തിൻ്റെയും പരിമണം അത് എല്ലായിടത്തും ഒരേപോലെ പടരുമെന്നാണ്. ഇത് പറയുമ്പോൾ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ ഓർക്കുകയാണ്. 50 വർഷം 60 വർഷം മുമ്പേ 55 വർഷം മുമ്പേ 1 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തുള്ളൊരു ഹോസ്പിറ്റലുണ്ട്. അവിടെ ഇളയ സഹോദരനെ കൊണ്ടുപോയി. അവിടെ ചെന്ന് കയറുമ്പം ഒരമ്മ 40 വയസ്സുള്ള അമ്മ മൂത്രത്തിൽ കല്ല് വന്ന് മൂത്രം പോകാതെ കിടന്ന് വെളിവെക്കുകയാണ്. കിടന്നിങ്ങനെ ഉരുളുകയാണ്. ചുറ്റും കുറച്ച് പേര് കൂടി നിൽപ്പുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ഇളയ ആങ്ങളെയും കൊണ്ട് ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോയി. തിരിച്ചു വരുമ്പോഴും ഒരു വെളിവെച്ചുകൊണ്ട് ഉരുളുകയാണ്. അപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചപ്പോൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു സൂചി കൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കുന്നത്. ആ സൂചി ഒരാൾക്ക് എടുക്കും, പിന്നെ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ തിളപ്പിക്കും, പിന്നെ അടുത്ത ആൾക്ക് എടുക്കും, പിന്നെയും ചൂടുവെള്ളത്തിൽ തിളപ്പിക്കും. പക്ഷേ കറണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആർക്കും ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കില്ല. പിന്നെ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കണമെങ്കിൽ രോഗികളാണ് മേടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്. 10 പൈസയാണ് സ്പിരിറ്റ്. അത് മേടിച്ചു കൊടുത്താൽ ആ സൂചി കഴിയിട്ടാണ് ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കുന്നത്. ഈ സ്ത്രീക്ക് 10 പൈസ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ആ 4 മണിക്കൂർ മൂത്രം പോകാതെ കിടന്ന് വെളിവെച്ചത്. അപ്പോൾ ഇത് ഓരോന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. മറ്റുള്ള എന്തെടുക്കുമ്പോഴും മറ്റുള്ള ലോകത്തേക്ക് ഒന്ന് ചുറ്റും നോക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും നമുക്ക് തോന്നുന്നു. ഒരു കുഴിയേര ഇണചേരുന്ന കുട്ടികളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു, മരിക്കുന്നു. അതിനപ്പുറം നമ്മളെന്ത് ചെയ്യുന്നു? കുഴിയേര പിന്നെയും മണ്ണിന് വളമാകുന്നു. നമ്മൾ മരിക്കുമ്പോൾ ഭൂമി കെമിക്കലിടും, അല്ലെങ്കിൽ അന്തരീക്ഷപ്പുറം കൊടുക്കും. ഇതാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ എടുത്ത് നശിപ്പിച്ചും പോവുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? സനാതനത്തിൽ സൂര്യന് മെഴുതിയുടെ ആവശ്യമില്ല. സിട്ടി സിട്ടാവൻ രണ്ടല്ലാന്ന് എപ്പോഴും പറയും. ഒരു പ്ലെയിൻ്റെ എഞ്ചിൻ കേടാലും പറക്കാൻ പറ്റില്ല, സ്കൂളിലും പറക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുപോലെ എല്ലാത്തിനെയും ഈശ്വരനെ കണ്ട് സ്നേഹിക്കാനും സേവിക്കാനാണ് നമ്മൾ സനാതനം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. വലത് ഇടത് തലോടുന്ന പോലെ ആ ഒരു ഭാവത്തിലാണ് സനാതനം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ ജീവിതം ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് പോലാണ്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനൊരു താളമുണ്ട്. ഈ വിശ്വത്തിനും അതിലെ സകല ജീവിക്കും തമ്മിൽ അഭേദ്യമായ ബന്ധമുണ്ട്. പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന നെറ്റ്വർക്ക് പോലാണ് ഈ വിശ്വം. 4 പേര് ചേർന്ന് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ കോണിൽ ചലനമുണ്ടായാൽ തരംഗം എല്ലായിടവും പ്രതിഫലിക്കും. അതുപോലെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഒറ്റയായോ കൂട്ടമായോ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഈ പ്രപഞ്ചമെന്ന ഒരാളുടെ കൊണ്ട് പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവരും മാറി നമ്മൾ മാറി നടക്കില്ല. അവർ മാറി നമ്മൾ മാറിയാൽ ഈ മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ നഷ്ടം സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം പാഴാക്കുന്നതാണ്. ലോകം മുഴുവൻ ഉറ്റുനോക്കുന്നതും ഒരു വേഴാമ്പലിനെപ്പോലെ ദാഹിച്ചു കഴിയുന്നതും നിസ്വാർത്ഥ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള സന്മനസ്സുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയാണ്. നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയുടെ മാറിൽ മുറിപ്പാടുണ്ടാക്കി പോകേണ്ടവരല്ല, ഭൂമിയുടെ മുടിയിൽ പൂക്കൾ ചാർത്തി പോകേണ്ടവരാണ്. ആ നിഷ്കളങ്കയുടെയും നിസ്വാർത്ഥയുടെയും ഈ പുഞ്ചിരിയുടെ പൂക്കൾ ഒരിക്കലും വാടാതെ കൊഴിയാതെ നിലനിൽക്കാൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും കഴിയട്ടെ. അതിന് കൃപ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമസ്കാരം. डॉक्टर का कार्य स्वर्ण जैसा है। इसमें यदि रिसर्च का अंश भी जुड़ जाए तो मानो सोना सुगंधित हो जाता है। अब अम्मा बताएंगी कि रिसर्च में अम्मा की रुचि कैसे जागी। लगभग 40 वर्ष पूर्व कई महिलाएं अम्मा के पास आकर रोती थी, कहती थी मेरे पति को जन्मजात हार्ट के वाल्व की बीमारी थी। चूंकि विदेशों से वाल्व आयात करना बहुत महंगा पड़ता, उनका उपचार न हो सका। परिणाम स्वरूप 40 वर्ष की आयु में ही उनके हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। भारत में जब सस्ते दाम वाला चित्रा वाल्व बना तो यह बड़ी महत्वपूर्ण खोज थी, जिससे आम आदमी के लिए हृदय की शल्य चिकित्सा सुलभ हो गई। बाद में जब कोच्चि में हमारा अस्पताल खुला तब हम बहुत से निःशुल्क व कम लागत में ऑपरेशन कर पाए। अम्मा ने स्वयं ऐसे कई लोगों को देखा है जो इस सर्जरी के बाद 70 या उससे अधिक उम्र तक जी पाए। अम्मा के मन में विचार उठा कि काश ऐसा आविष्कार पहले हुआ होता, भारत में अच्छा रिसर्च हुआ होता। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भारत में रिसर्च को जो प्रोत्साहन दिया गया है वह सराहनीय है। उदाहरण के लिए कोरोना वैक्सीन, जिसके आविष्कार से मृत्यु के दर में इतनी भारी गिरावट आई है। उसी प्रकार आयुष्मान भारत योजना, जो कि विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस योजना है, का जन्म उनकी ही दीर्घ दृष्टि और गरीबों के जीवन स्तर में सुधार लाने में उनके अथक प्रयास का फल है। ऐसी असंख्य योजनाएं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। उन्हें इन कार्यों को आगे बढ़ाने की शक्ति ईश्वर प्रदान करे, ये अम्मा की प्रार्थना है।
हमारे अमृता विश्वविद्यापीठम में पढ़ाई की कई शाखाएं हैं, जैसे इंजीनियरिंग, कंप्यूटिंग, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी और मेडिसिन। इन सब क्षेत्रों में रिसर्च हेतु उत्कृष्ट सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। यदि सब लोग संयुक्त रूप से सभी शाखाओं में रिसर्च करें तो ऐसा कुछ नहीं बचेगा जो हम न कर सकते हों। आज हम जगत को एक परिवार के रूप में नहीं बल्कि एक व्यवसाय के रूप में देखते हैं। जब हमारा जगत के प्रति ऐसा दृष्टिकोण होगा तो हमारी अपेक्षा सभी क्षेत्रों में अपार प्रगति की ही होगी। लेकिन संभवतः इस प्रकार की प्रगति हमेशा उपयोगी सिद्ध न हो। उदाहरण के लिए कैंसर की कोशिकाओं में सदैव वृद्धि होती रहती है, लेकिन उनका यही अपरिमित विकास ही तो रोग और नाश का कारण बनता है। इसी प्रकार जो विकास समाज को समग्र लाभ न पहुंचाए उसे समुचित विकास कहा ही नहीं जा सकता। अंततः इसका परिणाम व्यक्ति और समाज दोनों का विनाश होगा। यह ऐसा क्षेत्र है जहां हमें मूल्यों के महत्व को समझना होगा। मूल्यहीन समाज वैसा है जैसे सीमेंट के बिना बनी बिल्डिंग। मूल्यों का समावेश करके ही समाज पूर्ण विकसित फूलों से लदे वृक्ष की भांति फल फूल सकता है। जीवन में दो प्रकार की परिस्थितियां आती हैं, एक जिन्हें प्रयत्न द्वारा बदला जा सकता है और दो जिन्हें बदलना संभव नहीं होता, केवल स्वीकार करना पड़ता है। उदाहरण के लिए कोई 5 फुट का आदमी 6 फुट लंबा होना चाहे, पर उसका आनुवंशिक गठन ऐसा है कि 5 फुट से 1 इंच भी ज्यादा बढ़ नहीं सकता। वो कितनी भी विटामिन की गोलियां खाएं या पांव जोड़कर उल्टा ही क्यों ना लटका रहे, वो 6 फुट लंबा नहीं हो सकता। उसके पास इस स्थिति को स्वीकारने के सिवा दूसरा चारा नहीं होता। लेकिन कई परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां प्रयत्न करते रहना पड़ता है। उदाहरण के लिए हम परीक्षा में फेल हो जाएं तो जब तक पास ना हो जाएं प्रयत्न करते रहना चाहिए। हमें ये विवेक होना चाहिए कि किन परिस्थितियों को स्वीकार करना है और कहाँ प्रयत्न करने की आवश्यकता है। आध्यात्मिकता हमें प्रत्येक वस्तु को उसके उचित स्थान पर देखना सिखलाती है, ताकि हम मेंढक को हाथी और हाथी को मेंढक के रूप में ना देखें। आज हम हर जगह इंटरनेट कनेक्शन पाने को कैसे व्याकुल रहते हैं, लेकिन सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन का होना ही काफी नहीं, अपने इनर नेट को भी कनेक्ट करना होगा। हमें यहाँ आकर हमें आध्यात्मिकता के महत्व को समझना होगा। इससे भीतरी जगत एयर कंडीशन होता है, जबकि शेष सारा ज्ञान बाहरी स्थितियों को ही एयर कंडीशन करता है। किंतु मन की एयर कंडीशनिंग ना हुई तो हम कभी सुख शांति का अनुभव नहीं कर पाएंगे। आजकल हर कमरा मानो एक सुपरमार्केट सा बन गया है। उंगलियों की नोक पर सुपरमार्केट्स रखी हैं जो लुभा लुभा कर कहती हैं आइए आइए, चुंबक की तरह अपनी ओर खींचती हैं। परिणाम यह कि हम हमेशा बाहर ही देखते रहते हैं और यूं ही अधिकाधिक चीजें इकट्ठी करते करते थक हार जाते हैं। आकाश को लपेटकर अपनी कांख में दबाने की कोशिश करना असंभव है। आज हम अधिकांश समय अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने नहीं बल्कि इच्छाओं के पीछे भागते बिताते हैं। इच्छाएं और आवश्यकताएं दोनों अलग हैं। उदाहरण के लिए 1000 रुपए की घड़ी और 1 लाख रुपए की घड़ी समय तो एक सा ही दिखाती हैं। अम्मा के कहने का तात्पर्य यह बिल्कुल नहीं कि आप घड़ी ना पहने, लेकिन हाँ इतना ध्यान रखें कि वासना पूर्ति से हमें कभी पूर्ण शांति या संतृप्ति नहीं मिल सकती। फूल की सुगंध सदा हवा की दिशा में ही बहती है, किंतु प्रेम और सेवा की सुगंध सब दिशाओं में समान रूप से बहती है। अम्मा को अपने बचपन की एक घटना याद है जो लगभग 58 वर्ष पूर्व घटी होगी। जब अम्मा 10 वर्ष की थी तो अम्मा का 5 वर्षीय भाई बीमार हो गया। अम्मा उसे लगभग 1 किलोमीटर दूर छोटे से दवाखाने में लेकर गई। वहां रोगियों को भर्ती करने के लिए कमरे नहीं थे, बस एक डॉक्टर और 2-3 नर्सें ही थी। उस दवाखाने पहुंचे तो एक महिला को बरामदे में लोट लोट कर जोरों से रोते चिल्लाते देखा। कुछ लोग उसे घेरे खड़े थे। अम्मा ने उसे भीतर जाते और बाहर निकलते समय भी पीड़ा में लोटते देखा। जब अम्मा ने उसके रोने का कारण पूछा तो लोगों ने बताया कि उसके किडनी में पथरी थी, इसलिए असह्य पीड़ा के चलते मूत्र का निकास नहीं हो रहा था। उन दिनों हॉस्पिटल सबको इंजेक्शन लगाने के लिए एक ही सिरिंज का प्रयोग करते थे और कभी कभी उसे स्टेरलाइज करने के लिए एक हीटर पर उबलते पानी में डाल देते थे। बिजली ना होती तो यह हीटर भी ना चलता और इंजेक्शन देना बंद करना पड़ता था। ऐसे में रोगी 10 पैसे में, केवल 10 पैसे में अल्कोहल की छोटी सी शीशी लाकर नर्स को देता ताकि सुई को स्टेरलाइज करके उसे इंजेक्शन लगा दे।
वो महिला पीड़ा में इसलिए लौट रही थी क्योंकि उसके पास अल्कोहल की शीशी खरीदने के लिए 10 पैसे भी नहीं थे और पीड़ा सहने के सिवा कोई चारा नहीं था। अम्मा की जन्मदात्री माँ दमयंती अम्मा ने अम्मा को अपने भाई को 2 डोसे और 1 कप चाय ले देने के लिए 15 पैसे दिए थे। अम्मा ने चुपचाप उसमें से 10 पैसे उस महिला को दे दिए और शेष 5 पैसों से अपने भाई को 1 डोसा ले दिया और चाय की जगह थोड़ा सा पानी पिला दिया। कितने ही लोग ऐसे हैं दुनिया में जिनके पास कुछ नहीं है और कष्ट में हैं। अम्मा के कानों में आज तक उस गरीब महिला की चीखें गूंजती हैं। तो कुछ भी करते समय हम हमेशा जगत के बारे में तनिक सोचें। आहार, निद्रा, मैथुन और मृत्यु तो कीड़े मकोड़ों के लिए भी सामान्य है। फिर ऐसा अनमोल मनुष्य जीवन पाकर क्या हम इससे बढ़कर कुछ कर रहे हैं? कम से कम कीड़े मकोड़े जितना लेते हैं उतना देते भी हैं। मृत्यु के बाद भी वे पौधों के लिए खाद बन जाते हैं, लेकिन मनुष्य जीवन भर बस लेता जाता है और मृत्यु पर भी धरती या वायु को प्रदूषित करके ही जाता है। जैसे सूर्य को राह दिखाने के लिए मोमबत्ती की आवश्यकता नहीं होती, वैसे परमात्मा को भी हमसे कुछ नहीं चाहिए। सनातन धर्म के अनुसार सृष्टा और सृष्टि में कोई भेद नहीं, तो हमें समूची सृष्टि में ईश्वर तत्व का दर्शन करते हुए सबसे समान रूप से प्रेम व आदर करना चाहिए। सृष्टि की हर चीज में एक लयताल है। संपूर्ण जगत और उसके हर प्राणी के बीच एक अटूट संबंध है। इस जगत के तार एक विशाल तंत्र की तरह परस्पर जुड़े हैं। जैसे किसी नेट को एक तरफ से पकड़कर हिलाएं तो उसकी तरंगे सब और महसूस की जा सकती हैं, उसी प्रकार जाने अनजाने हमारे भी सभी कर्मों की प्रतिध्वनि संपूर्ण सृष्टि में होती है। हम अलग थलग पड़े हुए द्वीप नहीं, एक ही श्रृंखला की कड़ियां हैं। हम दूसरों के बदलने की राह देखते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। पहले हम स्वयं को बदलने की कोशिश करें, फिर हमें देखकर दूसरे भी हमारा अनुकरण करेंगे। बच्चों, सेवा का कोई अवसर हाथ से जाने ना दो। जिनके हृदय में निस्वार्थ सेवा का भाव होता है, संपूर्ण जगत उन्हें आदर की दृष्टि से देखता है। हमें धरती माता पर घाव के निशान छोड़कर नहीं, बल्कि उसके केशों को फूलों से सजा कर जाना है। अम्मा परमात्मा से प्रार्थना करती है कि मेरे बच्चों के जीवन में निष्कलंकता एवं निस्वार्थ सेवा के फूल खिले रहें, ये फूल कभी मुरझाने ना पाए। यदि हम चाहते हैं कि हमारे कर्मों का वांछित फल मिले तो उसके लिए 3 चीजें आवश्यक हैं: उचित समय, स्वप्रयत्न और ईश्वर कृपा। उदाहरण के लिए, यदि कोई एक व्यक्ति एक नीलामी के लिए जाना चाहता हो, वह सुबह जल्दी तैयार होकर कार से एयरपोर्ट के लिए निकले, तो हो सकता है रास्ते में कार खराब हो जाए या एक्सीडेंट हो जाए और वो फ्लाइट के समय तक एयरपोर्ट ना पहुंच पाए, या समय पर एयरपोर्ट पहुंच जाए और चेक इन भी कर ले, पर बाद में घोषणा हो जाए कि इंजन में किसी गड़बड़ी के कारण या खराब मौसम के चलते फ्लाइट रद्द हो जाती है। यहाँ इस आदमी ने प्रयत्न तो किया, लेकिन कृपा पक्ष उसके अनुकूल नहीं था, इसलिए वो गंतव्य तक नहीं पहुंच सका। हमारे सभी कर्मों को पूर्ण बनाने के लिए ईश्वर कृपा का होना आवश्यक है। हम अपनी ओर से पूरा प्रयास करें और ईश्वर के अनुग्रह के लिए प्रार्थना करें। ईश्वर की कृपा सबकी रक्षा करें। ओम अमृतेश्वरी। कितना दिव्य ज्ञान हमारी प्यारी अम्मा। आपके ज्ञान रूपी सनातन प्रयास को हम हृदय से नमन करते हैं। हमें आशीर्वाद दीजिए कि हॉस्पिटल के हम सभी कार्यकर्ता आपकी प्रेरक दृष्टि, प्रेम, करुणा एवं समर्पण और निस्वार्थता को याद रखते हुए आपके दिखाए हुए मार्ग पर चल सकें। अब मंच पर हरियाणा के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी से हमारा विनम्र अनुरोध है कि कृपया आप यहाँ उपस्थित सभा को संबोधित करें, आप सबकी करतल ध्वनि के मध्य। देश के लोगों की दिलों की धड़कन परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आध्यात्मिकता की प्रतिमूर्ति, हम सबकी प्यारी पूज्य अम्मा श्री माता अमृतानंदमयी देवी अम्मा जी, माननीय राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, उप मुख्यमंत्री
श्री दुष्यंत चौटाला जी, माननीय केंद्रीय बिजली एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल जी, माता अमृतानंदमयी मठ के उपाध्यक्ष स्वामी अमृत स्वरूपानंद जी, उपस्थित सभी महानुभाव भाइयों बहनों, आज का यह अवसर बहुत ही विशेष एक अवसर है, बहुत महत्व का अवसर है। ये केवल एक हॉस्पिटल का उद्घाटन नहीं है, बल्कि गरीब लोगों की, जनता की सेवा के लिए एक किया जाने वाला यह यज्ञ है। ये धरती बाबा फरीद की धरती फरीदाबाद, जिसमें पूज्य माता अमृतानंदमयी अम्मा जी के चरण कमल पड़े हैं, आपके ही आशीर्वाद से यहाँ नर सेवा के नए प्रकल्प अमृता अस्पताल का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। मैं अम्मा जी, माननीय प्रधानमंत्री जी दोनों का ही अपनी ओर से, हरियाणा की जनता की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में देश आगे बढ़ रहा है। हरियाणा के साथ भी आपका एक बहुत लगाव और बहुत प्रेम है। उसी लगाव और उसी प्रेम के कारण से आपका ये जो आज का आगमन है, इसको हम आशीर्वाद स्वरूप आज ग्रहण करते हैं। लोगों की तकलीफों के प्रति आपको कितनी चिंता है, इसको कौन नहीं जानता। खास करके वो लोग अभावग्रस्त, गरीब, अंत्योदय के उत्थान के लिए जो लक्ष्य लेकर के आप चल रहे हैं, गरीबों के चाहे मकानों की व्यवस्था हो, चाहे उनके स्वास्थ्य की चिंता हो, चाहे उनके घर में रसोई के अंदर गैस पहुंचाने की बात हो, चाहे हर घर नल देने की बात हो, इस प्रकार की जितनी भी योजनाएं आप लोगों की तकलीफ को दूर करने के लिए कर रहे हैं, आपके ये प्रयास बहुत सराहनीय है। भारतवासी सभी आपके इन कामों को देखते हैं तो उनके मन में एक हिम्मत और एक विश्वास जागता है और निश्चित रूप से वो सोचते हैं कि हाँ, हमारे पीछे, हमारी पीठ पर कोई खड़ा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे पीछे खड़े हैं, तो उनका विश्वास और उत्साह ये जागता है। इसी कड़ी में आज अम्मा द्वारा ये जो हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, 130 एकड़ का ये हॉस्पिटल है। मुझे याद है कि 2016 में जब इसका शिलान्यास हुआ था, उस समय अम्मा ने हमको निमंत्रण दिया था। उस समय तक हमको जानकारी नहीं थी, लेकिन वो जो एक उस समय लगाया गया पौधा आज एक इतना बड़ा वटवृक्ष के रूप में, अस्पताल के रूप में ये खड़ा हुआ है। न केवल अस्पताल, बल्कि यहाँ एक नर्सिंग कॉलेज, एक मेडिकल कॉलेज 150 सीटों का, लगभग 2600 बेड का ये हॉस्पिटल है। 550 बेड आईसीयू के होंगे। तो इतना बड़ा ये विशाल वटवृक्ष, शायद भारतवर्ष का इतना बड़ा ये पहला अस्पताल है, पहला ये प्रकल्प है। इतना बड़ा भारतवर्ष में शायद भी कोई और होगा। तो आपने इस अस्पताल के माध्यम से जो अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखा है, जो उनकी स्वास्थ्य की चिंता की है, ये प्रधानमंत्री जी के स्वस्थ भारत की जो हमारी कल्पना है, उस कल्पना को निश्चित रूप से आगे बढ़ाएगा। हम हरियाणा के लोग इससे लाभान्वित होंगे। मैं हरियाणा की ओर से माता श्री अमृतामयी अम्मा जी का भी अभिनंदन का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने दक्षिण भारत के बाद उत्तर भारत में फरीदाबाद को चुना। इसके लिए मैं उनका विशेष आभारी हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों आज ये जो प्रकल्प शुरू हो रहा है, ये उसी कड़ी को और आगे बढ़ाएगा कि देश में जैसे कोविड के समय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने मिल करके एक लड़ाई लड़ी, उसको हराया है और आपके मार्गदर्शन में हम उसमें सफल हुए हैं। निश्चित रूप से इस प्रकार का ये जो प्रकल्प आगे कभी भी कोई स्वास्थ्य की दृष्टि से चैलेंज आता है तो इसका बहुत बड़ा योगदान इस अस्पताल को होगा। हम हरियाणा सरकार की ओर से भी स्वास्थ्य सेवाओं में जो वृद्धि कर रहे हैं वो भी बहुत उल्लेखनीय है। आपने आह्वान किया कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स की आपूर्ति अपने आप में बड़ा एक चैलेंज है। 2014 में जब हमने सत्ता संभाली थी, मात्र 7 मेडिकल कॉलेज उस समय चल रहे थे, 700 मेडिकल की सीटें थी।
आज हमने उसमें 6 मेडिकल कॉलेज की वृद्धि और की है। इस समय 13 मेडिकल कॉलेज हो गए हैं, जिसमें 1650 जो MBBS के डॉक्टर्स ये प्रवेश प्राप्त कर रहे हैं। और न केवल इतना ही, 8 मेडिकल कॉलेज, और मैं उसमें आज इस मेडिकल कॉलेज का भी नाम जरूर जोड़ना चाहूंगा कि अब 9 मेडिकल कॉलेज पाइपलाइन में और हो गए हैं। इन सब के बनने के बाद हर जिले में मेडिकल कॉलेज हो जाएगा और लगभग 2800 मेडिकल के जो छात्र हैं MBBS के, वो इसमें शिक्षा प्राप्त करेंगे। और हरियाणा की, प्रदेश की आपूर्ति तो हो ही जाएगी, और भी जहां कहीं डॉक्टर्स की आवश्यकता महसूस होगी, निश्चित रूप से सेवा के काम में ये लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोगों ने आयुष्मान भारत, जो आपका एक बहुत बड़ा सपना है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसके अंदर अभी तक हरियाणा के 10.5 लाख परिवार उसमें सम्मिलित थे, हमने उसका दायरा बढ़ाया है प्रदेश सरकार की ओर से। उसमें और एक 11 लाख परिवारों को जोड़ करके लगभग 21.5 लाख परिवारों को उसका लाभ हम देने जा रहे हैं, ताकि गरीब आदमी को आवश्यकता पड़ने पर उसका लाभ 5 लाख रुपए प्रति वर्ष, ये जो उनको एक सहायता राशि का आश्वासन है, कि उनको मिल सके और उनका लाभ पहुंचा सके। आज मैं पुनः आपके यहाँ आगमन पर और इस इतने बड़े प्रयास जो माता अमृतामयी अम्मा जी, जिनको हम कहते हैं, इनके पैतरों से, वास्तव में ही अम्मा हम सबकी माँ हैं। सब आपके माँ श्री आपके सब बच्चे हैं। आपका आशीर्वाद इन बच्चों पर बना रहे। पुनः प्रधानमंत्री जी का, अम्मा जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपके प्रेरणादायी शब्दों हेतु आपका सादर धन्यवाद। अब हम जिस क्षण की प्रतीक्षा में थे, हम अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध करते हैं कि वे अमृता हॉस्पिटल फरीदाबाद का उद्घाटन डिजिटल प्लाक का अनावरण करके करें, एवं इसके साथ आप सब आनंद लें इस अभूतपूर्व कार्य पर आधारित एक वीडियो का। एक बार जोरदार करतल ध्वनि। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अम्मा के दिव्य सानिध्य में माननीय महामहिम बंडारू दत्तात्रेय एवं हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की उपस्थिति में अमृता हॉस्पिटल फरीदाबाद का उद्घाटन कर रहे हैं। भारत स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में विश्व का अगुवा बनता जा रहा है। भारत आज विश्व के लिए एक बार फिर संजीवनी बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य सेवाएं हर गांव, हर शहर पहुंच रही हैं, घर घर पहुंच रही हैं। प्रधानमंत्री जी ने देश में जो स्वास्थ्य क्रांति की मशाल जलाई है, उसकी रोशनी देश ही नहीं विदेशों तक पहुंच रही है। उनकी इस तपस्या में उनके साथ हमेशा खड़ा रहा है अमृता हॉस्पिटल्स। 25 से अधिक वर्षों से अमृता हॉस्पिटल हमारे जीवन को उत्कृष्ट बनाने की दिशा में अग्रिम तकनीकी और नवीन चिकित्सा पद्धतियां अपनाकर उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाओं में अग्रगामी रहा है। अपनी परंपरा का पालन करते हुए हमारी संस्थापिका अम्मा श्री माता अमृतानंदमयी देवी के आशीर्वाद से फरीदाबाद हॉस्पिटल का शिलान्यास 9 मई 2016 में माता अमृतानंदमयी मठ के उपाध्यक्ष तथा अमृता विश्वविद्यापीठम के अध्यक्ष स्वामी अमृत स्वरूपानंदपुरी की उपस्थिति में हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी के हाथों हुआ। अब हम आपके सम्मुख देश का सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर आ रहे हैं। एक 130 एकड़ का विशाल परिसर, 2600 बेड्स, 5,20,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ मेडिकल कॉलेज, 81 स्पेशलिटीज, 64 फुली नेटवर्क मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स, 24 घंटे डिजिटली मॉनिटर